नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कच्छ गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो कर पहुंचे और हजारों करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। देखिए हमारे संवाददाता मनु भाई परमार की एक पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पर ड्रोन के जरिए अन्य आकाशीय जो है जो हथियार है उनके जरिए हमले करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारे पूरे के पूरे जो सशस्त्र बलों ने हर एक ऐसी चीज को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जो धरती तक नहीं पहुंची। वो मिलाकर खूब खूब स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपनु। आवो फरी एक बार मंचस्थ विराजमान सर्वे महानुभावों उष्माभेर तालियों साथे स्वागत करिए, अभिवादन करिए। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूरनी बेजोड़ सफलता बाद अपना देशना લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી જ્યારે અનેક વિકાસલક્ષી ભેટની સોગાત લઈને આપણી કચ્છની ધન્ય ધરા પર પધાર્યા છે ત્યારે તેઓનું સ્વાગત કરવા અમે અતિ ઉત્સુક છીએ। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल जी અને માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનોહરલાલજી ને સવિનય નિવેદન કે આપ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું કચ્છની હસ્તકલા આલેખથી ફ્રેમ અને શોલથી સ્વાગત કરશો। खूब તાળીઓ સાથે આ ક્ષણને વધાવીએ। હવે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વિવિધ ભેટ સોગાતોથી લાગણીસભર સ્વાગત કરશે માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, માનનીય સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ અને માનનીય જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રી। ઓપરેશન સિંદૂરની ઝળહળતી સફળતા આલેખથી આ ફ્રેમ સાથે પાઘડી અને કચ્છની હસ્તકળા આલેખથી ફ્રેમ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને અપાઈ રહી છે ત્યારે આપણે તાળીઓ સાથે આ ક્ષણને વધાવીએ। खूब खूब आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। હવે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા હેતુ આમંત્રિત કરીએ છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ પદાધિકારીશ્રીઓને। શ્રી કશ્યપભાઈ શુક્લ, શ્રી દેવજીભાઈ વર્ચન, શ્રી દિલીપભાઈ શાહ, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ અને શ્રી ધવલભાઈ આચાર્ય। સુંદર મજાની ભેટ સોગાતોથી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો આવકાર થઈ રહ્યો છે, સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। ગૌરવની આ ક્ષણ। ધન્યવાદ। માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે હવે એવા ગૌરવશાળી નાગરિકોને આમંત્રિત કરીશું જેઓએ અનેકવિધ સેવા કાર્ય કરી વિશેષ ઉપલબ્ધિ મેળવી છે। શ્રી સુરેશભાઈ ડાંગર, હિનાબેન રાજગોર, ભુજ; રાજીબેન વણકર, કુકમા; શ્રી હિતેશભાઈ વોરા, કુંભારડી; ભૂમિકાબેન છાભૈયા, કોટડા; સુરેશભાઈ ડાંગર સંગડ અંજાર દિવ્ય મિત્ર તરીકે જાણીતા અને અનેક દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓની મદદ કરતા રહે છે। હિનાબેન રાજગોર, ભુજ, બીજી એશિયન યોગાસન સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપ 2025 નવી દિલ્હી ખાતે સુવર્ણ પદક જીત્યો છે અને 21 દેશોમાંથી 210 ખેલવીરોએ એમાં ભાગ લીધો હતો, તેમાં તેઓએ સુવર્ણ પદક મેળવ્યો છે।
ખૂબ અભિનંદન. રાજીબેન વણકર કુકમા, આપ કચરામાંથી પ્લાસ્ટિક ભેગું કરી અને અનેક સુંદર વસ્તુઓ બનાવો છો. 40 બહેનોને આપની સાથે આ ઉત્તમ કાર્યમાં જોડાયા છે અને 500થી વધારે બહેનોને આપે ટ્રેન કરી છે. હિતેશભાઈ વોરા કુંભારડી પ્રાકૃતિક ખેતીમાં સતત કાર્યરત છે. ભૂમિકાબેન છાભિયા કોટડા, તેઓએ ભુજ મહિલા ફાર્મર પ્રોડ્યુસર્સ કંપની લિમિટેડની સ્થાપના કરી છે. અવિનાશી શૌર્યની ધરતી કચ્છ. અહીંયાના દરેક પથ્થર, દરેક કણ અને દરેક શ્વાસ દેશભક્તિની ગાથાઓ કહે છે. આજે જ્યાં આપણે સર્વે હાજર છીએ તે ધરતી પર આવનારા દિવસોમાં સિંદૂર વનનું નિર્માણ થવાનું છે. એ યાદગાર વન જે આપણા શૂરવીર જવાનોની દેશભક્તિ અને બલિદાનનું પ્રતીક બની રહેશે. અને 1971ની યુદ્ધ દરમિયાન કચ્છની બહાદુર વીરાંગનાઓએ દેશ રક્ષા માટે જવાનોની સાથે ખભે ખભો મિલાવી એર સ્ટ્રીપનું નિર્માણ કર્યું હતું. આજે જગદંબાઓ આપણી સામે સાક્ષાત છે, ત્યારે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી તેઓના વરદ હસ્તે તેમને સિંદૂર વન માટે સિંદૂરના રોપાની ભેટ કરશે. ભાવ જાગૃત કર્યો હતો. અનેરો ઉત્સાહ દરેક માવડીના મુખ પર છે. દેશ આપનો હંમેશા ઋણી રહેશે. धन्यवाद. विकसित गुजरात, हरित गुजरात के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं भारत सरकार के माननीय मंत्री विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य श्री मनोहर लाल जी को कि वे अपने स्वागत उद्बोधन से हमें मार्गदर्शित करें. देश के लोगों की हृदय की रगों के अंदर एक रक्त संचार को मजबूती देने वाले हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ગુજરાતને વિકાસના પથ પર વધુ વેગવંતુ બનાવનાર આપણા ગુજરાતના ગૌરવરૂપ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો તેઓના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે આવકારીએ. विकसित गुजरात, ग्रीन गुजरात अंतर्गत भुज शत्रु के हर कुटिल मंसूबे को कुचल दिया है. वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर निवेदन करते हैं कि वे रिमोट द्वारा विकास की इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें. आइए तिरंगा लहराकर धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का. न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारतवर्ष को और अधिक आत्मनिर्भर, विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब वह क्षण आ गई है जिसका हमें आतुरता से हम प्रतीक्षा कर रहे थे. वह आवाज जिसने जन जन में विश्वास जगाया, वह व्यक्तित्व जिसने भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाया, वह नेतृत्व जिसके संकल्प ने विकसित भारत एट 2047 को एक अभियान से जन आंदोलन बना दिया है. आइए भारत के गौरव, देश के यशस्वी नेता और हम सब के प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तालियों की गूंज और हर्ष ध्वनि के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं. भारत माता की. આપણો તિરંગો ઝૂકવો ના જોઈએ. હા, भारत माता की. इस पावन धरा पर आशापुरा माता के आशीर्वाद हमारी सारी आशाएं पूरी करती है.
आशापुरा माता ने हमेशा इस धरती पर अपनी कृपा रखी है। मैं आज कच्छ की धरती से मां आशापुरा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा और कच्छ का नाता बहुत पुराना है। आप लोगों का प्यार भी इतना है कि मैं अपने आप को कच्छ आने से कभी रोक नहीं पाता हूं। और जब मैं राजनीति में भी नहीं था, सत्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं था, उस समय भी कच्छ की धरती पर लगातार आना ये मेरी सहज कार्य रचना हुआ करती थी। यहां के चप्पे चप्पे पर जाने का मौका मिला है। कच्छ के लोगों का आत्मविश्वास अभावों के बीच भी आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ये हमेशा हमेशा मेरे जीवन को दिशा देते रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी को शायद पता नहीं है। आज तो यहां का जीवन बहुत आसान हो गया, लेकिन तब हालात कुछ और हुआ करते थे। और जब मुख्यमंत्री के रूप में मुझे याद है, जब पहली बार नर्मदा का पानी कच्छ की धरती पर आया, शायद वो दिन कच्छ के लिए दिवाली बन गया था। और ऐसी दिवाली पहले कभी भी कच्छ ने देखी नहीं होगी जो उस दिन हमने देखी थी। पानी के लिए सदियों से तरसता कच्छ, मां नर्मदा ने हम पर कृपा की और मेरा सौभाग्य है कि सूखी धरती पर पानी पहुंचाने के कार्य में निमित्त बनने का मुझे अवसर दिया आप सबने। मैं जब मुख्यमंत्री था, लोग गिनते थे कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार कच्छ आए, हिसाब लगाते थे। कुछ लोग तो कहते थे मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी है। अनेक गांवों में जाना, मेरे कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों को मिलना, मेरे कार्यालय में जाकर के बैठना, ये मेरे स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा था। साथियों, मैंने देखा है कि कच्छ में पानी नहीं था, लेकिन कच्छ के किसान पानीदार थे। उनका जज्बा हमेशा देखने लायक रहा है। सालों तक जो भी मैंने कच्छ में अनुभव किया, और मैं उसमें विकास की बहुत संभावनाएं देखता था। कच्छ ऐसा नहीं हो सकता। जिस भूमि पर हजारों साल पहले धौलावीरा हुआ हो, उस भूमि में जरूर कोई ताकत होनी चाहिए। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और साथियों, कच्छ ने दिखा दिया कि उम्मीद और निरंतर परिश्रम से स्थितियों को पलटा जाता है, आपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है।
और इच्छित सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब यहां भूकंप आया था तो दुनिया को लगता था कि बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और कच्छ मौत की चादर ओढ़ करके सोया था उस भूकंप में। लेकिन साथियों, मैंने कभी मेरा विश्वास खोया नहीं था। मेरा विश्वास कच्छी खमीर पर था। અને એટલે જ હું તો કહેતો હતો બાળકોને ભણાવવું પડશે કે કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ। लेकिन मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा, भूकंप को भी कंपा करके मेरा कच्छी मारू खड़ा हो जाएगा। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आज कच्छ व्यापार, कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। आने वाले समय में कच्छ की ये भूमिका और बड़ी होने वाली है। इसलिए जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। मन रुकने का नाम नहीं करता है। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।